तो कल हमने कहाँ तक किया था? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सब फॉर्मूलाज मैंने बताया था. This is file number 02 handwritten and this is file number 03. Both are of 2020 batch, right? And all the formulas are there in both the files also. We have discussed this first numerical in which we have learned how to calculate the mean, median, mode, variance, standard deviation and coefficient of variation. And how to calculate the standard deviation with both the methods, the first method and the second shortcut method also, right? And then we have also discussed the question number 2 also, in which we have learned how to calculate the coefficient of variation, in which 2 projects were given and which project is more risky, that we have to comment. So the project with the lower coefficient of variation will be less risky. So we have discussed this numerical also. तो जो जिसका ज्यादा है वो ज्यादा रिस्की है और जिसका कम है वो कम रिस्की है. इसके बाद ये प्रैक्टिस के लिए एक सम था जिसमें प्रॉफिट ऑफ एस्टिमेटेड फॉर 2 प्रोडक्ट्स were given and find which product gives more consistent profit, right? इसमें भी कुछ नहीं करना था. देखो ये इन thousands दिया है, thousands दिया है, बट हमें उससे कुछ लेना देना ही नहीं है. जो नंबर दिया है, क्योंकि सारे नंबर thousands में ही है, तो तुम्हें आगे 3 जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं है. यू कैन नॉर्मली सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर, राइट? बट यहाँ पे ये जो आंसर है ना 87.33, ये रॉन्ग है. शायद ये 87.11 आना चाहिए. किसी ने सॉल्व किया था और भेजा भी था शायद मुझे, है ना? किसी ने ट्राई किया, क्या आंसर आ रहा था? तो 8.7.11 आ रहा था. 87.11. तो ये भी थोड़ा चेंज हो जाएगा. 16.25. That is fine. और ये ए का राइट है, बट क्योंकि ए का कम है, ए का सीवी कम आएगा ना, तो therefore प्रोडक्ट ए गिव्स मोर कंसिस्टेंट प्रॉफिट. कंसिस्टेंसी पूछेंगे, बैट्समैन का स्कोर या स्टूडेंट के मार्क्स या प्रॉफिट्स या सेल्स का, कौन सा दो में से किसका कंसिस्टेंसी अच्छा है या विच इज मोर कंसिस्टेंट. तो जिसका कम होगा वो मोर कंसिस्टेंट है. बट अगर रिस्की पूछेंगे तो जिसका ज्यादा है वो मोर रिस्की है, ठीक है? तो इसलिए प्रोडक्ट ए गिव्स मोर कंसिस्टेंट प्रॉफिट बिकॉज इट्स सीवी इज लेस. किसी ने ये सॉल्व किया होगा तो ग्रुप में इसका सॉल्यूशन भेज सकते हो. तो जिनको डाउट है, ठीक है ना, दे कैन रेफर दैट, है ना. द आंसर्स आर मेंशन्ड हियर. दिस वाज फॉर प्रैक्टिस, राइट? नाउ this was also for practice only for first question. जो first question था वैसे टाइप का ये है, ये भी तुम लोग ने किया होगा, तो ये सब आंसर्स आ गए होंगे. This was very simple, right? Now we will discuss from question number 5 today. What is this question number 5? The mean and median for a data set are 27.5 and 26. Find the mode. ये टाइप का क्वेश्चन चांस है नहीं, ठीक है ना. बट स्टिल हमने एक फॉर्मूला कल पढ़ा था यहाँ पे, द रिलेशन बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड. तो मोड इज नथिंग 3 मीडियन minus 2 मीन. So this formula is used here because mean is given and median is given and we have to find the mode. So mean and median is given and we have to find the mode. So we have used the relation of mean, median and mode, 3 median minus 2 mean, and we have substituted the value here, and this is just very simple calculation. This sum is not important, this is just for the knowledge purpose. Clear है ना ये तो सबको? Yes, sir. So next is this. This we have to discuss the geometric mean and weighted arithmetic mean also. See, we have discussed population, we have discussed mean, we have discussed median, mode. Weighted mean बाकी है, weighted mean आज discuss करेंगे, geometric mean discuss करेंगे.
We have also discussed variance, standard deviation, and coefficient of variation. So first we will discuss this geometric mean, and then we will also discuss weighted arithmetic mean, and in that which various types of further sums can come. So this is a question here. Consider a stock market that grows by 10%. Consider a stock. Stock means share. So consider a share that grows by 10% in year 1. Year 1 में शेयर का प्राइस 10% से बढ़ेगा, ग्रो होगा, it will increase by 10% and declines by 20% in year 2. Year 2 में वो 20% से कम हो जाएगा and then grows by 30% in year 3. और year 3 में it will again grow by 30%. तो find the growth rate. यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन नहीं बोला है, ग्रोथ रेट फाइंड करने बोला है. और ये वाला क्वेश्चन ग्रोथ रेट का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा चांस है. तो कैसे हमें ग्रोथ रेट फाइंड करना है? सबसे पहले जो भी 3 साल का इंक्रीज डिक्रीज दैट इज गिवन इन परसेंटेज, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इन नॉर्मल नंबर्स. तो अगर 1 रुपीज हम इन्वेस्ट करते हैं और वो 10% से बढ़ेगा, तो व्हाट विल बी आफ्टर ईयर एंड? इफ एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1 rupee will become how much at year end? तो in 1 you will end up, तो ये तो देखो 1 ही लिखना है. अब अगर ग्रो हुआ तो जो 10% है, 10% मतलब क्या होता है? 10/100. तो 10/100 is 0.1. तो 1 plus 0.1, 1.1 आया x1. Then सेकेंड ईयर बिगनिंग पे अगर कोई ₹1 था और उस ईयर 20% डिक्लाइन हुआ इसलिए हमने माइनस किया. 20% मीन्स 20/100. तो 0.2, तो 1 minus 0.2, 0.8. And in the third year also it is growing. Growing means it is increasing. So we will add 30% in 1. 30% means 30/100, 0.3. So we get 3 number of 3 years. I have given them notation x1, x2, x3. You can give any number or you can just find this numbers. Any notation, right? ये क्लियर है? ऐड और लेस किया हमने. ग्रो है, इंक्रीज हुआ तो उतना परसेंटेज 1 में ऐड करना है, और अगर डिक्लाइन हुआ तो लेस करना है. और ज्योमेट्रिक मीन का कल हमने फॉर्मूला लिखा था, तो इट वाज वेरी सिंपल कि जितने भी नंबर है सबको मल्टीप्लाई करो और रेज टू 1/n, या अगर 3 नंबर है तो क्यूब रूट ऑफ ऑल द नंबर्स मल्टीप्लाइड, या एनी वन फॉर्मूला वी कैन यूज. तो दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जो मैंने यहाँ पे दोनों फॉर्मूला लिखा है, राइट? आई हैव रिटन हियर बोथ द फॉर्मूलास. ये 3 है इधर, यानी क्यूब रूट ऑफ x1 into x2 into x3, और यू कैन राइट इन दिस वे आल्सो, x1 into x2 into x3 रेज टू 1/3. अब ये क्यूब रूट नॉर्मल कैलकुलेटर में हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर ही हमें यूज करना पड़ेगा. तो आंसर 1.046 आएगा. जिसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो तुम लोगों को ये कैलकुलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, यू कैन चेक एंड कंफर्म विद मी, राइट? एनीवन हैव साइंटिफिक कैलकुलेटर नाउ? यस सर. Yes, so you can check. और जिसके पास नहीं है, buy at the earliest. कैशियो का 991, FX 991 ES. Yes. तो देख लो इतना आंसर आ रहा है क्या? 1.046. वन 1.074 आ रहा है सर. 1.074. कौन सा वाला इक्वेशन डाला तुमने? सर सेम आ रहा है. देखो तुम्हें कौन सा राइट वाला की सेम आ रहा है ना, किसका रॉन्ग आया? उसने कुछ या तो रॉन्ग पुट किया होगा. यू आर यूजिंग द राइट वन और लेफ्ट वन. कौन सा वाला इक्वेशन डाल रहे हो तुम? लेफ्ट वन. तो स्क्वायर रूट ना पहले डालना पड़ेगा. क्यूब रूट के लिए साइंटिफिक पे की होता है, क्यूब रूट के लिए भी की होता है, या रूट लेके वहां पे 3 लिखना पड़ता है. मे बी जो रूट डाला वो खाली फर्स्ट नंबर के नीचे होगा, वो
सारे नंबर के नीचे होना चाहिए when you are typing. You can follow the other one also. ब्रैकेट में ये सब मल्टीप्लाई करके फिर रेस टू 1 डिवाइड बाई 3 करोगे तो भी चलेगा. हाँ सर आया अभी 1.046. तो 1.046 इज द आंसर. ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है. इससे टफ कैलकुलेशन साइंटिफिक में आने वाले हैं जो तो मैं सिखाऊंगा ही. ठीक है ना. मैं एक साइंटिफिक के लिए जैसे मैंने बोला कि आई विल कीप वन लेक्चर ऑल्सो फॉर एक्सप्लेनिंग इन विच आई विल शेयर द साइंटिफिक कैलकुलेटर स्क्रीन and I will tell how to calculate and which key you have to press for various calculations. These are very normal ones. But they have not asked growth, they have not asked geometric mean, they have asked growth rate. Growth rate का ही क्वेश्चन आने का पूरा चांस है एग्जाम में. For 8 marks, 10 marks. तो ये तो एक बहुत. ग्रोथ रेट क्या होता है? Geometric mean -1. Growth rate will be geometric mean में से 1 माइनस करना है हम. तो 1.046 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.046 आया. And to convert it into percentage, we will multiply this answer by 100. So we will get 4.6%. इसका मतलब क्या होता है कि अगर फर्स्ट ईयर कि स्टार्टिंग में अगर मैंने खरीदा है ये शेयर और थर्ड ईयर के एंड पे मेरे को 4.6% ही रिटर्न मिलेगा. If I have bought this share at the start of the first year, तो मेरा 100 रुपया 104.6 रुपया ही होगा. क्यों इतना ही बढ़ेगा? तुम लोग बोलोगे सर फर्स्ट ईयर में 10% बढ़ा था, सेकेंड ईयर में भी 30% बढ़ा था, बट बीच में हमारा क्या हो गया 80%, 20% कम भी हुआ. तो यू कैन जस्ट कैलकुलेट ऑल्सो, क्योंकि ये तो 3 ही नंबर है. सपोज अगर हमने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया होता तो फर्स्ट ईयर एंड में वो 110 हो जाएगा. 110 में से 20% माइनस करोगे 22 रुपीज तो हमारा कितना हो जाएगा 88. तो हमारा सेकेंड ईयर के एंड पे वैल्यू होता है 88. वी आर कैलकुलेटिंग इन टर्म्स ऑफ रुपीज. अब 88 का 30% ऐड करोगे. 88 का 30% कितना होता है 25.4. तो 88 प्लस 25.4 कितना होगा? तो दैट इज योर ग्रोथ रेट. तो हमारा आंसर आएगा 113 पॉइंट कितना आ रहा है शायद, राइट? 113.2. तो तुम लोग बोलोगे सर 32 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, बट वो तो 3 साल में. तो 13.2% का प्रॉफिट हुआ इन 3 years. बट इन 1 year ग्रोथ रेट इज ऑलवेज फॉर 1 year. इसको हम लोग CAGR भी बोलते हैं. अगर तुम लोग ने CAGR वर्ड सुना होगा, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. एनुअल कितने परसेंटेज से ग्रो हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट? दैट इज 4.6%. ऐसे हम बोलेंगे. क्लियर है? Yes sir. Like that. So this is growth rate. This is important sum. और यहाँ पे क्या है, ये तो जस्ट आएगा नहीं ये सब. ये तो बहुत सिंपल है कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ही बोला है और 3 नंबर दे दिए. दे आर नॉट परसेंटेज, दे आर डायरेक्टली द नंबर. और ग्रोथ रेट कुछ नहीं पूछा है, ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, डायरेक्टली कैलकुलेट करना है. दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? दिस तो यू विल अंडरस्टैंड. This is for practice. This you will practice on the basis of this question number 6. 6 के जैसा ही question. The annual return of an investment for the past 3 years are first year में plus 12%, minus 8%, plus 2%. Find the mean rate of growth. यानी growth rate CAGR जैसे हमने question number 7 है वैसे ही find करना है, right? This question number 6 sorry solve किया है वैसे ही find करना है. आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? यू कैन चेक लेटर. Now this is also the question number 7 is also very important. Question number 7 is of weighted arithmetic mean. Weighted arithmetic mean. यहाँ पे क्या दिया है? An examination was held to decide the awarding of a scholarship.
the weights of various subjects is different. The marks obtained by 3 candidates out of 100 in each subject are given below. एक एग्जामिनेशन लिया गया था जिसमें स्कॉलरशिप डिसाइड करना था कि स्कॉलरशिप किसको देना है. One has to decide to whom the scholarship is to be given. So 4 subjects exam was been taken and 3 candidates obtained this marks. And the weight of each subject is given. Maths was given the highest weight 4, physics was given 3, chemistry was given 2, and English was given 1. And the ABC is the name of the student, and the marks below A are the marks scored by A in all these 4 subjects. And marks below B are the marks scored by B in the subjects, and similarly C. So how to calculate? Here it is not mentioned. You have to calculate weighted arithmetic mean. But we have to decide scholarship किसको देंगे और weight दिया हुआ है. तो हमें weighted arithmetic mean ही निकालना है. तो सबसे पहले weighted arithmetic mean का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? समेशन XW अपॉन समेशन W. यानी वेट का टोटल हमें चाहिए एक तो, और X इंटू W का टोटल चाहिए. तो मैंने पहले यहाँ पे W का टोटल लिया है, समेशन W, वेट दैट इज 4 + 3 + 2 + 1 दैट इज 10, राइट. एंड वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन XW अपॉन समेशन W. तो समेशन W, समेशन यानी टोटल ऑफ वेट, दैट इज तो 10. व्हाट इज दिस X इंटू W? वेट तो W है, X क्या है? X ये मार्क्स है. X क्या है? ये मार्क्स है. तो तुम टेबल में भी बना सकते हो या जैसे इसमें लिखा है वैसे भी कर सकते हो. सेम सम मैंने लास्ट ईयर एक्सेल फाइल में भी सॉल्व करके बताया था टेबल में. I will check that file and explain in that file also. First, हमें क्या करना है? ये weight into marks पहले A का निकालना है. Weighted arithmetic mean of A we will calculate. So what we will do is multiply the weight, that is 4 into 60, plus, because we need the total here. Summation means total. So 60 into 4 plus 62 into 3 plus 55 into 2 plus 67 into 1. तो ये सबका टोटल जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इससे तुम्हें ये X इंटू W का A का टोटल आ जाएगा. ये X है, मार्क्स को हम वेरिएबल बोलते हैं. हाइट है, वेट है, मार्क्स है, दैट इज योर X. तो ये नंबर्स को वेट से मल्टीप्लाई करके टोटल लेना है और उस टोटल को W के टोटल से डिवाइड करना है. सो वी विल गेट द weighted arithmetic mean of A, which is 60.3. क्लियर है ये? हाउ टू कैलकुलेट इट, ये सबको समझा? तो B और C का तुम लोग निकालोगे, कोई भी एक का निकालो और फिर मैं दिखाता हूँ कि सबका राइट आ रहा है क्या. ऑल कैन कैलकुलेट ऑफ एनी वन. जिसको जिसका कैलकुलेट करना है B और C का तुम लोग कैलकुलेट करके आंसर नोट कर लो और फिर मैं बताता हूँ, तो यू कैन चेक कि राइट आ रहा है या नहीं. किसी का आया? BC का कैलकुलेट किया कुछ लोगों ने, सबने किया? डी का 59.4 है क्या? ठीक है, तो आई विल शो. इसका हुआ है, एक बार चेक कर सकते हो, राइट.
तो बी का इज 59.4 एंड सी का इज 61.8। यस सर, बराबर है दोनों। अब स्कॉलरशिप किसको देंगे जिसका वेटेड अरिथमेटिक मीन सबसे ज्यादा है? तो वी विल गिव स्कॉलरशिप टू whom? सी का ज्यादा है। तो सिंस द ये एक स्टेटमेंट भी लिखना है, सिंस द वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ स्टूडेंट सी इज द हाईएस्ट, द स्कॉलरशिप शुड बी अवॉर्डेड टू स्टूडेंट सी। क्लियर है? इसमें किसी को कुछ नहीं समझा, कुछ डाउट है? एनीवन? और इट्स क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है ना सबको? तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन ही है, ठीक है ना, 6 एम्प्लॉइज का। इसमें तो और क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। इस साल किसी को इस साल के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो दे कैन शेयर, और आई विल फाइंड वन मोर फाइल व्हिच आई हैव। बट इसको मैंने अभी, ठीक है, मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट करके तो शेयर कर दूंगा, बट इसमें और क्वेश्चन हमें मिलेंगे, राइट? तो वी कैन डिस्कस दोस क्वेश्चंस आल्सो। देखो ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया था, राइट? दिस इज द सेम क्वेश्चन ओनली, एन एग्जामिनेशन हेल्ड, है ना, कैलकुलेट वेटेड अरिथमेटिक मीन टू अवॉर्ड द स्कॉलरशिप। So this too we have discussed already. We will discuss weighted arithmetic mean का one more sum, और ये भी हमने डिस्कस किया वो वाला, consider a stock that grows by 10%. This we have not discussed. This we will discuss now, and this is also of weighted arithmetic mean only. यहाँ पे क्या दिया है? Student has to study 5 subjects in a semester. एक स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट पढ़ने एक सेमेस्टर में। तुम लोगों के तो 8 है, राइट? यू हैव 8 सब्जेक्ट्स ना? 8 सब्जेक्ट्स है आईबीएस में कि ज्यादा है, कम है? 8 में से आई विल टीच ओनली 4, राइट? एंड 4 तो यू विल हैव टू स्टडी थ्रू आईबीएस एंड ऑन योर ओन, बिकॉज वो सब तो थियरी सब्जेक्ट्स है। सो हियर फॉर ईच सब्जेक्ट ही इज अवॉर्डेड अ ग्रेड A, B, C और D on his performance. तुम लोगों को भी ग्रेड मिलेगा, A, B, C, D, E. Grade is important. The subjects have varying credit hours depending on the curriculum. Credit hours reflect the number of classroom hours of teaching. At the end of the semester, the student's CGPA तुम लोगों को भी मिलेगा, is reported in his mark sheet, and the CGPA is the weighted average. CGPA is the weighted average of his grade points. यहाँ पे लिखा है CGPA क्या है? weighted average है। तो अगर CGPA ढूंढने बोलेंगे ना तो भी हमें weighted arithmetic mean वाला ही मेथड फॉलो करना है। यहाँ पे तो लिखा भी है कि वो weighted average है, नहीं भी लिखा होगा और CGPA पूछा है, then also we should calculate the weighted arithmetic mean. Weight with the credit hours for the received course, respective course. Below is the data regarding his performance in all subjects in the semester. एक स्टूडेंट का सारे सब्जेक्ट में क्या परफॉर्मेंस था, उसको क्या ग्रेड मिला, वो दिया हुआ है। लेकिन ग्रेड ए का मतलब होता है 10 पॉइंट्स, ग्रेड बी मतलब 8 पॉइंट्स, ग्रेड सी मतलब 6 पॉइंट्स एंड ग्रेड डी मतलब 4 पॉइंट्स। कैलकुलेट इज सीजीपीए। तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, उनका क्रेडिट आर दिया हुआ है और ग्रेड दिया हुआ है। तो पहली चीज ये याद रखना है कि जो क्रेडिट आर है वो वेट है, वो वेट है, वो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा भी है।
weighted with the credit hours. So this is our weight. और ये जो है ग्रेड, ये हमारा x है, बट वो नंबर में होना चाहिए. हम a इंटू 3 करके तो डिवाइड नहीं कर सकते. तो यहाँ पे ग्रेड को कितने पॉइंट्स होता है? a ग्रेड मीन्स 10 पॉइंट्स. तो जहाँ पे a है वहाँ हम 10 लिखेंगे, जहाँ पे b है वहाँ पे 8 लिखेंगे, ठीक है ना, और जहाँ पे c है वहाँ पे 6 लिखेंगे. तो हमारे पास वेट आ गया, x आ गया. फिर हमें क्या करना है? वेट इंटू x, दैट इज ग्रेड पॉइंट्स, और उसका टोटल लेके वेट के टोटल से डिवाइड कर देंगे. ये मैंने सॉल्व किया भी था लास्ट ईयर, यहाँ पे होगा. यस, इट इज सॉल्व हियर. सी क्रेडिट आवर्स, ये हमारा वेट है. ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था. दिस इज अवर वेट. ये बता दिया है वेट. ये रहा 34363. 34363. This was given, right? I will change the color here. तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, जिसको मैंने अभी ग्रीन किया. ग्रेड भी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि स्टूडेंट को कौन सा ग्रेड मिला, यहाँ पे, राइट? ए, बी, बी, बी एंड सी. और ए का मतलब कितना ग्रेड पॉइंट्स? 10, बी का मतलब 8 और सी का मतलब 6. ये भी क्वेश्चन में दिया था. तो ये जो ग्रेड पॉइंट है ये एक्स है हमारा. और फिर W इंटू एक्स, यानी 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 8 32, 3 इंटू 8 24, 6 इंटू 8, like that. And you have to take the total. You have to take the total of the WX and you have to take the total of the W. WX बोलो या XW बोलो, that is one and the same. So weight into the variable का total और W का total. फॉर्मूला क्या है? वेटेड अरिथमेटिक मीन का समीशन XW या WX अपॉन समीशन W, यानी 152 डिवाइड बाय 19. तो 152 डिवाइड बाय 19 8 आ रहा है. तो देयरफॉर द CGPA इज 8. CGPA 8 है. तो ये भी क्लियर है ना? ये टाइप का क्वेश्चन भी सबको क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है कुछ? तो वेटेड अरिथमेटिक मीन भी आता है, तो दैट इज आल्सो वेरी सिंपल ओनली. क्लियर? एनी डाउट इन दिस? किसी को नहीं कोई डाउट? नहीं सर. अब जी देखो, इसमें पहले मैं एक चीज और भी सिखाता हूँ कि हमने मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सीखा है अभी. बट अगर क्वेश्चन में कभी प्रोबेबिलिटी दिया है, जैसे ये इस तरह के क्वेश्चन है, ये भी तुम लोगों को होगा. किसी को सेमेस्टर 1 का सिलेबस मिला है कि नहीं मिला है अभी तक? एनीवन हैव द सिलेबस? आई विल टीच वन सम ऑफ दिस टाइप. ये था लास्ट ईयर तो, ठीक है ना, बिकॉज ये सब फाइल्स तो पुराने हैं. तुम लोग मुझे सिलेबस भेज देना. दिस इज कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन when the probability is also given. When the probability is also given, right? तो इसमें क्या करना है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ अ हॉस्पिटल वांट्स टू डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेशेंट्स coming to the outpatient department every day. The number of patients coming to the OPD every day is random variable. The hospital has arrived at the following probability distribution of the number of patients coming to the OPD. एक दिन में कितने आएंगे उसका प्रोबेबिलिटी दिया है कि एक दिन में 100 पेशेंट आते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.1, यानी 10% चांस है कि 100 पेशेंट आएंगे.
110 पेशेंट आएंगे उसका 0.25 25% चांस है, और 120 पेशेंट्स आएंगे उसका चांस 0.3 30% है, और 130 पेशेंट्स आएंगे उसका चांस 0.35 है। तो हमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेशेंट्स निकालना है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ओपीडी पेशेंट्स। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर तुम इसको टेबल में सॉल्व करते हो तो ये दो कॉलम तो एज इट इज कॉपी करना है, और इसके बाजू में एक कॉलम और बनाना है, दैट इज इसको अगर हम x लेते हैं और प्रोबेबिलिटी को p, तो x इंटू p उस तरह का यहाँ पे देखो। जैसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये अभी खाली ये तो कोई दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आई विल शो दिस क्वेश्चन आल्सो, बट फॉर दैट क्वेश्चन यू हैव टू, जो भी नंबर ऑफ पेशेंट है उसको हम x लेंगे और प्रोबेबिलिटी को p लेंगे। ये दो कॉलम तो क्वेश्चन में दिया होगा, तो तुम लोग ये बना सकते हो, ये कॉपी कर सकते हो 100 110 120 130 and 0.1 0.25 0.3 and 0.35, right? कैलकुलेशंस में इधर बता भी देता हूँ, तो ये जो right, the number of OPD patients को x लिया है, probability को p लिया है, the numbers are 100 110 and probability is given 0.1 25 3 and 35. Then what you have to do is, to calculate the expected value, you have to copy this. यानी हमें क्या चाहिए, x into p, यानी मल्टीप्लाई करना है, तो 100 into 0.1 that is 10, then 110 into 0.25 कितना आ रहा है 27.5, 120 into 0.3 36, 130 into 0.35 45.5, और इसका टोटल लेना है, टोटल आया 119। ये जो टोटल आएगा इसी को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ओपीडी पेशेंट इज 113। तो ये तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, बस वेरिएबल इनटू प्रोबेबिलिटी एंड द टोटल ऑफ दैट, तो उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स इंटू पी, जो यहाँ पे लिखा है, और इसको हम ई एक्स बोलते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, कैपिटल ई और ब्रैकेट में एक्स, तो उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स इंटू पी कॉलम का टोटल। तो ये फॉर्मूला तुम लोग लिख सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ई एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू पी। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्टली जैसे कि टेबल बना के भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब हमें क्या चाहिए, और इसमें तो सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू बोला था और कुछ नहीं बोला, बट ऐसे प्रोबेबिलिटी वाले सम में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैसे निकालेंगे वो भी आना चाहिए। यहाँ पे लिखा है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन विद द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। तो उसके लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए
वी हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस फर्दर कॉलम्स। ये कॉलम तो हमने बनाया ही, उसके अलावा हमें ये कॉलम्स भी और बनाने पड़ेंगे, ये पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, सो वी कैन फाइंड द वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी हम लोग ये जो सेकेंड सम है छोटा सा, ये इसमें मैं बता देता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन द प्रोबेबिलिटी इज गिवन। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन एवरेज। तो यहाँ पे क्या दिया है, रिटर्न दिया है पहले, तो योर रिटर्न विल बिकम एक्स, और रिटर्न कितना दिया है, 15, 13 एंड 7। रिटर्न परसेंटेज में ही होता है, तो तुम लोगों को उसको परसेंटेज में लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। So 15, 13 and 7, and probability you will write 0.1, 0.6, 0.3. 15 into 0.1, 1.5 आया, ये 7.8 and ये 2.1. तो ये जो तुम्हारा 11.4 आया, ये क्या है, 11.4 is your expected value. Expected value is 11.4. x into p के टोटल को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट। अब हमें नेक्स्ट कॉलम क्या बनाना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ही बनाना है। द नेक्स्ट कॉलम इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो x माइनस ईवी यानी 15 माइनस 11.4, what you will do is here this minus this. तो 3.6 आ रहा है, ऐसे I will copy the formula. 13 minus 11.4, that is 1.6. 7 minus 11.4, that is minus 4.4. तो तुम्हारा ये कॉलम आ जाएगा। दिस इज क्लियर। x माइनस ईवी क्या है, ये सबको क्लियर है ना। x माइनस ईवी इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. देन x माइनस ईवी स्क्वायर, स्क्वायर तो सबको आता ही है, यानी ये जो कॉलम है इसका स्क्वायर, यानी 3.6 का स्क्वायर, 1.6 का स्क्वायर माइनस 4.4 का स्क्वायर। नॉर्मल कैलसी में 3.6 इंटू इक्वल टू दबाओगे तो आ जाएगा, साइंटिफिक में 3.6 रेज टू 2, and then the last column, which is this column, x minus ev square into probability into this column. ये वाला कॉलम x माइनस ईवी स्क्वायर और ये जो प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, यानी 12.96 इंटू 0.1, तो वो 1.296 आएगा। बट मैंने 2 डेसिमल तक लिया है, इसलिए वो 1.30 हो जाता है। अगर हम 3 डेसिमल लेंगे तो 1.296। वैसे ही 0.6 इंटू 2.56, ठीक है ना, वो भी 3 डेसिमल तक लेंगे तो 1.536। देन 0.3 इंटू 19.36, दैट इज योर 5.81, और 3 डेसिमल तक लेंगे तो 5.808, और फिर ये उसका टोटल, दिस इज द टोटल 8.640। ये जो 8.640 है, इसी को हम वेरिएंस बोलते हैं। दिस इटसेल्फ इज योर वेरिएंस।
तो प्रोबेबिलिटी वाला भी न्यूमेरिकल आता है, तो हाउ टू कैलकुलेट वेरिएंस। और एसडी तो क्या हो जाएगा, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा? अभी ये तो आना चाहिए सबको। Square root of variance. स्क्वायर रूट ऑफ पेरेंट्स, तो 8.64 का कितना आएगा स्क्वायर रूट, बताओ कैलकुलेट करके। टू पॉइंट नाइन फोर। So this is your standard rule. ये भी क्लियर है ना सबको? ये मैं थोड़ा अरेंज करके क्वेश्चन भी एक्सेल में पेस्ट करूंगा जो मैं यहाँ पे सॉल्व किए, और वो मैं एक अलग शीट में सिर्फ, क्योंकि इसमें ना सब मिक्स डेटा है एंड क्वेश्चंस आर नॉट है, तो आई विल ओनली, जो मैंने अभी 3 सम एक्सप्लेन किए इसको मैं एक अलग एक्सेल फाइल में, ये वाला और उसका क्वेश्चन, और ये जो 2 हमने डिस्कस किए इनके क्वेश्चन, और इसका ये आई विल पेस्ट एंड सेंड दैट, राइट। तो हाउ टू कैलकुलेट, तो इन्होंने भी यहाँ पे भी देखो सॉल्व है ऑलरेडी, 8.64 2.94 बनाया हुआ, राइट। और ये सब क्वेश्चन वैसे ही है, यू ऑल कैन प्रैक्टिस, आगे के सारे क्वेश्चन इसमें वैसे ही है, राइट। अब इसमें ना क्वेश्चन 4 में एक और एक्स्ट्रा पूछा है, देखो डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड डेली डिमांड। वो तो इजी है कि तुम लोग ये 0 इंटू 0.2 1000 इंटू 0.2 एक कॉलम बनाओगे और तुम्हारा टोटल लोगे, जो टोटल आएगा वो ए का आंसर हो गया, वो 1800 आएगा, राइट। What they are asking is कि assume that the company sell its product at $3.75 पर यूनिट, एक यूनिट कंपनी $3.75 में बेच रही है और एक 1800 यूनिट्स बिकने का चांस है, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेली रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, कितना यूनिट्स बेच रहे हैं मल्टीप्लाई बाय एट व्हाट प्राइस वी आर सेलिंग। तो 1800 इंटू 3.75, तो कंपनी विल अर्न $6750, ठीक है ना। सर वापस बता सकते हैं? देखो पहले तो ये ए का आंसर कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल लेना है, यहाँ पे मैंने किया हुआ है, क्या आएगा, ये तो दूसरा है, ये तो तुम लोग सिर्फ कर लो अभी भी। ये क्या करना है समझा ना, व्हाट यू हैव टू डू इज सी मल्टीप्लाई दिस। पहले तो एक्सपेक्टेड डिमांड बोला, एक्सपेक्टेड डिमांड यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो मल्टीप्लाई, जो एक थर्ड कॉलम बनाओ, ये एक्स है और ये पी है, 0 इंटू 0.2, तो डेट विल बी 0, 1000 into 0.2, that will be 200. 2000 into 0.3, that will be 600. 3000 into 0.2, that will be 600. 4000 into 0.2, that will be 400. उस कॉलम का टोटल लोगे, that will be 1800. 1800 तुम्हारा एक्सपेक्टेड डेली डिमांड होगा। ये तो समझ गया पहले सबको? यस सर। ये समझ गया। अब 1800 समझो, तुम्हारा 1800 जो डिमांड है वो प्रोडक्ट का है, जो प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो, समझो वो प्रोडक्ट पेन है, पेन, यू आर सेलिंग पेन, तो 1800 पेन you will sell daily, it is expected, and one pen you will sell at ₹3.75, so how much total revenue you will get। तो क्या करेंगे हम, अगर एक पेन हम $3.75 में बेच रहे हैं या रुपए में बेच रहे हैं और 1800 पेन बेच रहे हैं, तो टोटल कितना पैसा हमें मिलेगा। ये तो सबको समझा कितना पैसा मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे हम, जितना बेचा 1800 पेन और एक पेन 375 में, तो 1800 इंटू 3.75 will give you the answer of part B। पार्ट बी का आंसर क्लियर है सबको अभी? यस सर। यस।
अब इसमें देखो पार्ट बी एंड सी तो सिंपल है, पार्ट बी एंड सी तो वही है, एक्सपेक्टेड रेट यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस, दो कॉलम दिया है, आगे के सब कॉलम्स बनाओगे और आ जाएगा। पार्ट ए इसमें डिफरेंट है। पार्ट ए में क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रेट ऑफ रिटर्न विल बी एटलीस्ट 10%, यानी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 10% रिटर्न मिलेगा, एटलीस्ट 10 मतलब 10 या 10 से ज्यादा परसेंट रिटर्न मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रिटर्न दिया है तो 10 और 10 से ज्यादा वाला जो भी प्रोबेबिलिटी है वो सब प्रोबेबिलिटी को बस ऐड कर देंगे। 10 और 10 से ज्यादा ये लास्ट तीन है, ये तो 9.5 9.8 है, तो 10 का प्रोबेबिलिटी है 0.3 दैट इज 0.3, और 10 से ज्यादा है 10.2 भी 10 से ज्यादा है उसका प्रोबेबिलिटी है 0.3, 10.6 भी 10 से ज्यादा है उसका प्रोबेबिलिटी है 0.1, तो 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.1, बस तीनों को ऐड कर देंगे, तो योर आंसर इज 0.7 ऑफ दिस पार्ट ए। अगर पूछेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रेट ऑफ रिटर्न विल बी नॉट मोर देन 10, what is the probability that the rate of return will not be more than 10%, तो कोई बता सकता है क्या आंसर होगा? 0.1 plus 0.2. प्लस 0.3 ऑल्सो, नॉट मोर देन 10 ना, तो 10 तो इंक्लूड होगा उसमें, 10 से ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 10 में हमने 10 को लिया ना, मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, जो नंबर दिया वो नंबर और उससे ज्यादा, और नॉट मोर देन अगर कोई नंबर दिया है तो उसका मतलब क्या होता है, वो नंबर भी चल सकता है, ओके। तो 10 का भी काउंट करना है, तो 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3, तो अगर नॉट मोर देन 10 पूछेंगे तो आंसर विल बी 0.6। ठीक है, तो ये सब तो तुम लोगों को है क्या देखना, बिकॉज आई डोंट नो, बिकॉज दिस इज ऑफ 2025, और तब इस सब्जेक्ट का नाम क्वांटिटेटिव मेथड था, 2 साल इस सब्जेक्ट का नाम वाज क्वांटिटेटिव मेथड। कुछ सिलेबस तो चेंज हुआ है, बट दिस वाज देयर लास्ट ईयर, so this year also it might be there. This file I will share, वो मैंने शेयर नहीं किया है, ये वाले फाइल कल मैंने शेयर कर दिए थे, 1-2 दिन में मैं वापस सारे ये फाइल तो शेयर कर दूंगा, राइट। नो व्हाट मोर यू हैव टू लर्न इज कि अभी तो हमारा टाइम बचा है, तो सी आई विल डिस्कस more numericals from this topic from the past papers. देखो ये वाला एक है, ये क्वेश्चन क्या हमने डिस्कस किया आज, क्वेश्चन नंबर 3, have we discussed this question today, this type of question? Yes. Yes. अभी जो किया वैसा ही क्वेश्चन है ना ये तो ये वाला क्वेश्चन अभी हम कर सकते हैं, इसको सॉल्व तुम लोग ट्राई कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो शायद इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। तो अभी देखो ये क्वेश्चन जो है इधर, और ये वाला भी हमने डिस्कस किया है, ज्योमेट्रिक मीन, कैलकुलेट एनुअल एवरेज ग्रोथ है ना, CAGR यानी ग्रोथ रेट यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, तो वी विल ट्राई दिस क्वेश्चन आल्सो। CAGR भी मैंने बताया ये, तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से है। वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द बैकपैक्स, ये वेटेड मीन का है, ये भी यही टॉपिक से है, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। और बाकी तो ये स्केल ऑफ मेजरमेंट का है, और ये तो सब अलग टॉपिक है, और ये वाला क्वेश्चन भी इसी टॉपिक का है। मैं ऐसे अगर बोलूं तो क्या तुम लोग मानोगे जो हमने कल और आज सीखा है? क्वेश्चन रीड करो और कोई मुझे बताओ कि इसमें कौन सा लॉजिक या क्या फाइंड करेंगे हम। इफ आई से
कि कल से लेके आज तक जो भी सीखा है वैसा ही उसी में से है ये क्वेश्चन। तो अगर कल से आज तक किसी ने अटेंड किया है या लेक्चर सुना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल के हो सकता है क्या? यस। यहाँ पे क्या दिया है, मेहता एंड कंपनी इज द पॉलिसी ऑफ रिवॉर्डिंग इट्स एम्प्लॉय फॉर देयर परफॉर्मेंसेस। दे ऑनर द एम्प्लॉय विद द स्टार परफॉर्मर ऑफ द कंपनी, जिसको कैश प्राइस मिलेगा, और डिसीजन इज टेकन ऑन द अमाउंट ऑफ सेल्स डन बाय द एम्प्लॉयज। The company is confused between two employees as their performance are very similar. The company executive decides that employee with consistent performance, consistent word है ना, यानी रवि और रमेश में से जो ज्यादा कंसिस्टेंट है उसको अवार्ड मिलेगा। और कंसिस्टेंसी हम कैसे चेक कर सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल के। तो ये तुम लोगों का प्रैक्टिस के लिए है, ये तुम लोगों को सॉल्व करके मुझे भेजना है, ठीक है ना। ये पेपर मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ये पेपर है 2000 IBS का ही पेपर है, क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस इज विच ईयर, दिस इज ऑफ क्लास 25-23, 2 साल पहले का, अभी 25 चल रहा है तो 2 साल पहले का ये है पेपर। तो ये सीवी वाला तो तुम लोग प्रैक्टिस करोगे और भेजोगे। तो देखो 15 मार्क्स दिस, और ये सब दूसरे टॉपिक्स का है, ये अभी हमने सीखा ही नहीं है। पहले फॉर्मूला भी देते थे, इस बार देंगे या नहीं देंगे तुम लोग पूछ लेना फॉर्मूला, ठीक है, दैट इज फाइन। अब 15 मार्क्स का तो देखो ये आया था, कल से लेके हमने आज तक जो सीखा उसमें से 15 मार्क्स ये आया था, और अभी 3 सम ऊपर भी आए थे, ये वाला एक 5 मार्क्स का, ये वाला एक 5 मार्क्स का, ये वाला और ये वाला 20। यानी कल से लेके आज तक जो हमने सीखा उसमें से 23 में तो 35 मार्क्स का आया था, राइट। तो 25 मार्क्स का तो इस साल भी आएगा, अगर हम कम से कम भी पकड़े तो वी विल। तो हम लोग अब वो वाला तो तुम लोग करोगे, हम लोग ये 4 सम और सॉल्व कर लेते हैं, मतलब तुम लोग सॉल्व करो और मेरे साथ साथ तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, तो वी विल सॉल्व दिस 4 मोर सम्स एंड देन वी विल फिनिश टुडेस लेक्चर। फिर तो इको है 2 दिन, राइट। तो इकोनॉमिक्स में भी तुम लोग शेयर करो इस साल के नोट्स, फाइल, सिलेबस, एनीथिंग, सो आई कैन टीच अकॉर्डिंगली। तो ये जिसको आता है पहले स्टार्ट करो, मैं भी एक्सेल में सॉल्व कर रहा हूँ। वी विल सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे मैंने लिख दिया है मिड सेम 23 का है, बाद में फ्यूचर में भी क्वेश्चन पेस्ट कर दिया है, इसके नीचे ही मैं इसको सॉल्व भी कर दूंगा। इसमें क्या पूछा है, सिर्फ कंपनी शेयर का एक्सपेक्टेड वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों पूछा है। तो हमें ये सारे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे ऑब्वियसली, और यहाँ पे डेटा कितना है 5। तो आई विल टेक दिस फॉर्मेट। तो ईयर में पहले रिटर्न लिखता हूँ, रिटर्न को हम एक्स लेते हैं, प्रोबेबिलिटी को पी लेते हैं। तो रिटर्न इज 14, 16, 18, -8 and -15. Probability is 0.25, 0.33, 0.27, 10, 0.05। तो ये 2 कॉलम तो दिया था क्वेश्चन में। फिर हमने x इंटू पी बनाया,
x इंटू पी तो सबको पता है ना कैसे बनाते हैं, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 14 इंटू 0.25, 16 इंटू 0.33 लाइक दैट, ये आ गया और इसका टोटल आ गया विच इज 12.09। ठीक है 12.09। सो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू मंथली रिटर्न जो पूछा है, दैट इज योर 12.09। अब हमें क्या निकालना है, x माइनस ईवी। तो x माइनस ईवी मतलब हम क्या करेंगे, 12.09 को माइनस करें, या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही डालता हूँ, दैट इज x 14 माइनस 12.09, 16 माइनस 12.09 लाइक दैट। तो ये वैल्यूज आ जाएंगे 16 माइनस 0.9, 18 माइनस 12.09, माइनस 8 माइनस 12.09, तो दैट विल बी माइनस 20.09। जैसे ही माइनस 15 माइनस 12.09, और फिर ये सारे नंबर का स्क्वायर, 1.91 का स्क्वायर, 3.91 का स्क्वायर लाइक दैट। ये भी तुम लोग 2 डिजिट भी ले सकते हो या 3-4 डिजिट भी ले सकते हो, दैट इज फाइन, बट 2 या 3 से ज्यादा मत लो। फाइनल आंसर मैंने 2 डिजिट ही लिया यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग चलो 2 डिजिट ही लेते हैं फाइनल आंसर। और ये क्या है, दिस कॉलम x माइनस ईवी स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, तो इतना आना चाहिए। और ये 92.44 क्या है, कोई बताएगा व्हाट इज दिस 92.44? वेरिएंस। यस। और उन लोग ने पूछा क्या है क्वेश्चन में, वेरिएंस पूछा है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा। स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसका स्क्वायर रूट सबको पता है, कितना आएगा स्क्वायर रूट, कोई बता दो 92.44 का कैलकुलेट करके। 9.61 हो गया, सिंपल था ये क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स 8 मार्क्स, तो इन सबको आने चाहिए, कुछ है नहीं इसमें। आज हमने 2-3 सम डिस्कस किए ऐसे, राइट। अभी हम लोग ये ग्रोथ रेट वाला भी करेंगे। वैसे तो इसका पूरा सॉल्यूशन ना मेरे पास है ऑलरेडी, मैं क्यों बना रहा हूँ। देखो ये पूरा जो बीए का है ना, ये प्रोफेसर आनंद देसाई किसी को है इस साल? Anyone have this faculty teaching business analytics? कि नहीं है, कोई भी नहीं है किसी को भी? ठीक है, तो ये आईबीएस की फैकल्टी है, उन्होंने ये 23 का पूरा सॉल्यूशन बनाया हुआ ही है, ये भी मैं तुम लोग से शेयर कर दूंगा 23 का पेपर। तो देखो ये वो क्वेश्चन नंबर 3 है जो उसमें ऑलरेडी सॉल्व ही है, और ये फॉर्मूलाज है वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, दिस आल्सो आई विल शेयर, राइट। तो मुझे अच्छा इसलिए सॉल्व करने की, वैसे ही मैंने सॉल्व किया, बट ठीक है लाइव सॉल्व किया तो भी ठीक है कि यू कम टू नो, बट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फाइल आल्सो। अभी वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ग्रोथ है, बोला क्या है, वही एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट ज्योमेट्रिक मीन, इसमें परसेंटेज दिया हुआ है। तो अभी हमने किया था एक ज्योमेट्रिक मीन वाला परसेंटेज वाला, वैसे ही करना है, बट इसको हम टेबल में भी कर सकते हैं, ये दिया हुआ है। ओके, तो जैसे पता है मैंने कभी हैंड रिटन में सॉल्व किया था, मैंने टेबल नहीं बनाया था, बट हमने एक इंक्रीज डिक्रीज था शेयर वाला विच आई सॉल्व हियर, वैसे ही इसको करना है, मैं बोलूंगा सेम मेथड से ही करना है। कौन सा हमने किया था आगे का, ये ज्योमेट्रिक मीन है ये वाला, तो हमें पहले x1 x2 x3 निकाला था ना, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी वैसा ही है। अगर
ये ग्रोथ रेट दिया है, तो 19 का जो x1 बनेगा जिसको हम ग्रोथ फैक्टर बोलेंगे, तो 1 प्लस क्या आएगा, कोई बताएगा? 29% मतलब 0.29. यस 29/100, तो 1 प्लस 0.29 तो 1.29. 43% पॉजिटिव है तो 1 प्लस 0.43. ये नेगेटिव 11%, तो क्या आएगा इसका ग्रोथ फैक्टर? 1 minus 0.11. यस, तो वही यहाँ पे देखो सर ने भी सॉल्व किया है. ये डायरेक्ट कैसे आया सबको समझ गया? 1 माइनस 1 प्लस दिस परसेंटेज और नेगेटिव है तो माइनस, तो ये ग्रोथ फैक्टर आ गया. और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ये ग्रोथ फैक्टर जो आएगा सबको मल्टीप्लाई करके उसका फोर्थ रूट, या हमें ब्रैकेट में लिख के रेस टू 1/4. देखो क्या आंसर आ रहा है. उसका आंसर आएगा 1.2506. बट वो तो ज्योमेट्रिक मीन का आंसर हुआ. जैसे मैंने ये फाइल में बताया था कि जो नंबर आए उसको हम मल्टीप्लाई करके, 3 नंबर है तो रेस टू 1/3, 4 नंबर है तो रेस टू 1/4, 5 नंबर है तो रेस टू 1/5. तो यहाँ पे या तो क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, या ऐसे भी कर सकते हो. दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा. तो जो नंबर आएगा दैट इज नॉट द ग्रोथ रेट, दैट इज योर ज्योमेट्रिक मीन. ग्रोथ रेट निकालने के लिए क्या करना है, ये स्टेप और करना है कि जो भी ज्योमेट्रिक मीन आया उसमें से 1 माइनस करो और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट द ग्रोथ रेट इन परसेंटेज. तो सेम यहाँ पे करना है. ये जो आया चारों को मल्टीप्लाई करके रेस टू 1/4, उससे जो आंसर आएगा दैट विल बी 1.2506. बट ग्रोथ रेट कैसे आया? ये ग्रोथ रेट जो है 25.06, ये कैसे आया? 1.2506 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 0.2506, तो इंटू 100 करेंगे तो यू विल गेट दिस 25.06%. दिस इज योर ग्रोथ रेट. क्लियर है क्या? क्लियर है ना? हाँ ये सर. फॉर्मूला शीट विल नॉट बी गिवन दिस ईयर, तो फिर तुम लोगों को फॉर्मूला याद है. तो ये भी इजी था. देखो अब ये भी CAGR है, ये भी सेम है, बट यहाँ पे परसेंटेज में नहीं दिया है, यहाँ पे रुपीस और डॉलर में दिया है. तो हाउ विल यू कैलकुलेट? दोनों का CAGR निकालना है. 2 FMCG कंपनी है, एक नेस्ले और एक HUL. CAGR भी मतलब हमें वैसे ही ग्रोथ रेट ज्योमेट्रिक मीन ही यूज कर. तो ये तो 2 मेथड से कर सकते हो तुम लोग, बट CAGR ये वाला मेथड सबसे इजी है. इसमें क्या करना है, ये फॉर्मूला है, ये तुम लोग लिख लोगे CAGR के लिए. परसेंटेज में दिया है अगर, तो हमने जो ऊपर मेथड देखा ऐसे करेंगे, ग्रोथ फैक्टर निकाल के ऐसे निकाले. बट अगर रुपीस में दिया है तो डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. CAGR का फॉर्मूला यू ऑल विल राइट फाइनल वैल्यू अपॉन फर्स्ट वैल्यू रेस टू 1/t. T is the time period minus 1. अब फाइनल वैल्यू यानी लास्ट ईयर का वैल्यू कितना है? 95.87 अपॉन द फर्स्ट वैल्यू 102.59 रेस टू 1/3. वाई T is 3. जब भी ये फॉर्मूला यूज करते हो तो T is not the number of year. अभी नंबर ऑफ ईयर तो 4 है, तो स्टूडेंट से मिस्टेक क्या हो जाती है, यहाँ पे 4 ले लेते हैं. बट आई एम अगेन रिपीटिंग कि T is not the number of year. अगर नंबर ऑफ ईयर लेना होता तो हम यहाँ पे n लिखते हैं 1/n. T is the टाइम पीरियड. तो अगर ये मैंने सपोज December 31st ऑफ द फर्स्ट ईयर को इतना इन्वेस्ट किया, तो ये सारा जो ईयर दिया है, क्योंकि ईयर में डेट नहीं दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि फर्स्ट ईयर तो Jan 1 है और फोर्थ ईयर December 31 है. सबका डेट भी सेम हमें एज्यूम करना है.
यानी ये अगर दिसंबर 1 है तो ये भी दिसंबर 1 ऑफ द सेकेंड ईयर, ये भी दिसंबर 1 ऑफ द थर्ड ईयर और ये भी दिसंबर 1 ऑफ द फोर्थ ईयर। तो दिसंबर 1 ऑफ 2024 से लेके दिसंबर 1 ऑफ 2000, ये 21 है सपोज, तो दिसंबर 1 ऑफ 2021 से दिसंबर 1 ऑफ 2024 तक कितना टाइम पीरियड होता है? 3 साल होता है। ये तो मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ये नहीं भी समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैसे लेना है तुम्हें? ये जो लास्ट ईयर है माइनस द फर्स्ट ईयर। ये तो 1 2 3 4 लिखा है तो 4 माइनस 1 3, बट अगर 1 2 3 4 की जगह यहाँ पे ऐसे दिया होता 2021 2022 2023 2024, तो भी सेम लॉजिक है टू फाइंड द टाइम पीरियड 2024 माइनस 2021, तो भी आंसर 3 आएगा। तो टाइम पीरियड कि व्हाट इज द गैप between the first year and the last year, between the first value and the last value, so the time period between this is 3 years. क्लियर है क्या? समझा क्या ये सबको जो मैंने बोला एक्सप्लेनेशन? इज इट क्लियर कि किसी को नहीं समझा? यस सर, समझा। तो बस आ जाएगा, फिर देखो कैलकुलेशन तो आ ही जाएगा। नॉर्मल डिवाइड है, रेस टू है, देखो आंसर आ रहा है इतना, और नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब CAGR इज माइनस, और इसको 100 करना है फाइनल आंसर को, क्योंकि ग्रोथ रेट को ही CAGR बोलते हैं। तो माइनस में नेगेटिव है क्योंकि हमारा 102 रुपया 59 पैसा इतना बन गया। वैसे ही HUL का निकालिए, 51,193 अपॉन 38,224 रेस टू 1/3 माइनस 1। तो ये इतने डिजिट तक लिया है -1, तो इट विल बी दिस मच मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दिस इज योर CAGR और ग्रोथ रेट। ये भी क्लियर है? दोनों का आंसर आ जाएगा। देन वन मोर न्यूमेरिकल, ये वाला वेटेड अरिथमेटिक मीन। चलो ये वेटेड अरिथमेटिक मीन है, इसमें तुम लोग बताओ कि ये मैं बोल रहा हूँ वेटेड अरिथमेटिक मीन है, तो वेटेड अरिथमेटिक मीन में हमें एक तो वेट चाहिए और एक हमें क्या चाहिए? एक्स चाहिए, राइट? एक W और एक X। तो इसमें से वेट क्या होगा और एक्स क्या होगा? कैन यू टेल? So weight will be quantity and X will be price. यस, क्योंकि देखो प्राइस पूछा है, वेटेड एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज क्वांटिटी नहीं पूछा। तो जो पूछा है वो एक्स होता है और क्वांटिटी इज द वेट। तो इसको W लेंगे, इसको X लेंगे, W इंटू एक्स बनाएंगे, तो W इंटू एक्स का टोटल डिवाइड बाई वेट का टोटल, तो तुम्हारा वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे है क्वांटिटी को वेट लिया है, प्राइस को एक्स लिया है, W इंटू एक्स बनाया है, और वेटेड अरिथमेटिक मीन का ये फॉर्मूला है समेशन W इंटू एक्स डिवाइड बाई समेशन W, तो यू विल गेट द आंसर। तो ऑल दिस सम आर इजी। CV ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CAGR ग्रोथ रेट, और जो CGPA वाला हमने सम किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी वाला एक जो सम किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल दिस सम्स आर मोर इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताया, राइट? 25 मार्क्स अराउंड तो आएगा ही, यानी 100 मार्क्स के एग्जाम में से 25 मार्क्स का तुम लोग ने लर्न कर लिया है 2 दिन में। प्रैक्टिस तुम लोगों को करना है, डाउट्स पूछना है, राइट? और एक क्वेश्चन और है, वो भी तुम वैसे तो सॉल्व है ही, CV वाला, बट ये प्रैक्टिस करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10-15 मार्क्स के लिए आने ही वाला है, समझ लो। CV तो सबको आता है कि किसी को चाहिए CV का एक्सप्लेनेशन, anyone need explanation how to calculate CV again? ये रिकॉर्डिंग कल वाला भी मैंने वैसे अपलोड हो ही गया है YouTube पे, वहां भी जाके देख लोगे तो उसमें भी मिल जाएगा BA01 में। और इसका चाहिए तो ब्रीफ में मैं डिस्कस कर लेता हूँ।
यहाँ पे सॉल्यूशन है, तुम लोग चेक कर सकते हो बाद में, है ना, यू कैन चेक लेटर। और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, ये फाइल भी मैं शेयर कर देता हूँ, ये रहा। अच्छा, डायरेक्ट आंसर दिया है, आंसर ही लिखा है, यही आएगा। तो ये चलो तुम लोग की प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तुम लोगों को ये सब निकालना है। और फिर अगर आंसर अलग आ रहा है तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में, या मैं एक्सेल में सॉल्व करके भेज ही दूंगा, मेरे को तो एक्सेल में डालूंगा तो सबका आंसर फटाफट आ जाएगा, राइट। तो हियर ऑल्सो आंसर इज गिवन, पूरा स्टेप वाइज सॉल्व नहीं किया है, बट इस फाइल में है वैसा सब। और कल का लेक्चर BA01 जो मेल पे भी शेयर कर दिया है और यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, वो भी सुन के तुम लोग कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था, कैसे करना है, ये स्टेप है, ये फॉलो करना है। और सीवी निकालना है दोनों का, और जिसका सीवी कम आएगा वो कंसिस्टेंट है रवि और रमेश में से, और उसको ये कैश प्राइस 25,000 मिलेगा। क्लियर है ना, सब लोग करोगे ना ट्राई? Yes, sir. बस हो गया। एनी अदर डाउट? नो डाउट्स ना? किसी को है कुछ और डाउट्स है ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट रिगार्डिंग लेक्चर, जनरल डाउट, एनी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तुम लोग पूछ सकते हो। अगेन रिमाइंडिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियोस एंड वॉच, दिस इज फ्री। अभी तो कुछ भी नहीं है इसमें, टीम विल अपलोड ऑन डेली बेसिस टिल जून एंड तो, और फिर हम लोग देखते हैं। बट सब्सक्राइब करो जो भी वॉच कर रहे हो, ठीक है, एंड लाइक भी करो। अभी 86 सब्सक्राइबर्स बता रहे हैं यहाँ पे। अवर टारगेट इज 1000 बाय मंथ एंड, ठीक है, क्लियर? तो